ऐसा बयान जिसको सुनकर आप लोग أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ قیامت کے دن کا پہلا منٹ، وہ لمحہ جب زمین اپنی مضبوطی، سکون اور استحکام چھوڑ دے گی، آسمان اپنے شگافوں کے ساتھ لرزنے لگے گا اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جبکہ آپ کے ارد گرد لوگ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ ان کی آوازیں کائنات کی چیخ و پکار میں مل جائیں گی، اور وہ بلند آواز میں کہیں گے کہ یہی وہ قیامت کا دن ہے، وہ عظیم دن جس کے آنے کی قرآن کریم نے بلا شبہ تصدیق کی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ عز و جل کی رحمت کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ اس عظیم دن کے پہلے منٹ میں ایسی ہولناکیاں ظاہر ہوں گی اور وہ کچھ ہوگا جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ اس دن حساب کتاب، مخلوق کا احتساب شروع ہوگا اور لوگوں کے اعمال کے نتائج سامنے آئیں گے۔ نیک بخت لوگ ایسی ابدی نعمتوں میں نجات پائیں گے جنہیں اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نیک بختوں میں شامل فرمائے، جبکہ بدبخت لوگ ایسا عذاب چکھیں گے جو برداشت کے قابل نہ ہوگا۔ ہم ان سے، ان کے انجام اور ان کے حالات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں اللہ کی مطلق قدرت ظاہر ہوگی، پوری کائنات میں اتھل پتھل ہوگی، اور جو زمین بے جان تھی وہ کانپ اٹھے گی اور دوبارہ زندگی اگائے گی، تاکہ موت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ واحد القہار کی قدرت کو ثابت کرے۔ وہ انہیں حساب، پیشی، حشر اور میزان کے لیے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹائے گا۔ تو قیامت کے دن کے پہلے منٹ میں کیا ہوگا، اور کیا واقعی سائنسدانوں نے اس موعودہ دن کے بارے میں جان لیا ہے؟ اور کیا زمین اور اس پر موجود ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد کوئی زندگی ہوگی؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، قرآن کریم نے تاکید کی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ جھٹلاتے ہیں اور شک کرتے ہیں، اور اس دن وہ رسوا ہوں گے، پچھتائیں گے اور حسرت کریں گے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں اشارہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مہلت ختم ہونے کے بعد بمشکل ہی اس زندگی کو چھوڑتا ہے کہ اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب یا عذاب سامنے آ جاتا ہے۔ نیک لوگ، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کیفیت کے ساتھ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جو ہمارا رب ہے، قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جہاں تک بدبختوں کا تعلق ہے، ہم ان سے، ان کے حالات، ان کے انجام، ان کے ٹھکانے اور ان کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ بدبخت موت کے بعد ایک اور المناک زندگی شروع کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ قبر کی نعمتوں یا اس کے عذاب کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ تمام دلائل اس بات پر متفق ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اللہ اسے ہمارے لیے ایسا ہی بنائے، یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے
तो जन्नत वालों में से। ए अल्लाह हमें उनमें से बना, और अगर दोज़खी है तो दोज़ख वालों में से। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझे क़यामत के दिन उठाएगा। ए अल्लाह हमें अपने पास सच्चाई की मसनद पर जगह अता फरमा। ए कादिर मुतलक बादशाह, ए अल्लाह हमें रहम किए गए और नेमतें पाने वाले मोमिनों के ठिकानों में जगह दे। इस बिना पर किसी ऐसे मुसलमान के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, जायज़ नहीं कि वो क़यामत के दिन के बारे में शक करे। और जो कोई भी सोच की उस गुमराही का शिकार होता है, वो कमज़ोर ईमान वाला इंसान है, और ये शैतानी सोच इसे ईमान और इस्लाम के दायरे से निकाल सकती है अगर वो इस बात का इनकार करे कि एक और दिन यानी आखिरत का दिन है जिसमें दोबारा उठाया जाना, हिसाब, सवाब और अजाब है। जिस तरह अल्लाह ने पहली बार मखलूक को पैदा किया, वो उसे दोबारा भी पैदा करेगा। ये उस पर एक सच्चा वादा है, और बेशक अल्लाह अपना वादा खिलाफ नहीं करता। कुरान करीम ने हमें कई आयात में बताया है कि क़यामत का दिन आने वाला है। मैं अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाया, लेकिन ऐसे वक्त में जिसे अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ से इलाही खिताब हमें एक गहरे सफ़र की तरफ ले जाता है, एक ऐसा सफ़र जिसमें हमारा रब हमें तख्लीक की असल याद दिलाता है कि अल्लाह ने उसे कैसे शुरू किया और कैसे इंसान एक ना नजर आने वाले नुक्ते से शुरू होता है, फिर आखिरकार अपने खालिक की तरफ लौटता है जिसने उसे दुरुस्त शक्ल दी ताकि वो उससे उसकी जिंदगी और आमाल का हिसाब ले। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरतुल हज में फरमाता है, ए लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने में शक है तो गौर करो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। इन मुअज़्ज़ज़ आयात पर गौर करने से, जैसा कि मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, इंसान के दोबारा जी उठने और मौत के बाद लोगों को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के वाज़ेह दलाइल कायम होते हैं। तो पाक है वो ज़ात जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया और परवान चढ़ाया, और वो उन्हें दोबारा पैदा करने पर ज्यादा कुदरत रखने वाला है, और ये उसके लिए ज्यादा आसान है। दलाइल में से पहली दलील इंसान की तख्लीक के एक हालत से दूसरी हालत में इर्तका के जरिए है, और दूसरी दलील जमीन का मुशाहिदा करने और उसके एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने के जरिए है। गोया अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है कि जो तुम्हें मुख्तलिफ मराहिल में पैदा करने पर कादिर है और जो जमीन को एक हालत से दूसरी हालत में बदलने पर कादिर है, वो यकीनी तौर पर मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी की तरफ लाने पर कादिर है, और ये इसके लिए ज्यादा आसान है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क़यामत के दिन का इनकार करने वालों को बुरे अंजाम से डराया है, और ये कि वो ऐसे दिन पिछताएंगे और हसरत करेंगे जिस दिन न पिछतावा काम आएगा, न ईमान लाना और ना ही तौबा, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की जिंदगी में इसका इनकार किया था। इस मफहूम में जो आयात वारिद हुई हैं, उनमें हमारे रब का ये फरमान है, और अगर तुम देखते जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, वो फरमाएगा, क्या ये दोबारा जिंदा होना हक नहीं है? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। वो फरमाएगा, तो अब अजाब का मजा चखो, इसके बदले जो तुम कुफ्र करते थे। यानी ए अक्लमंद इंसान, अगर तू आखिरत का इनकार करने वालों का हाल देखता जब वो हिसाब के लिए अपने रब के सामने खड़े होंगे, तो तू एक बहुत बड़ी हौलनाकी और अजीम मामला देखता, जब उनका अजीम रब उनसे पूछेगा, क्या ये जिसे तुम अपनी आंखों से देख रहे हो सच नहीं है? ये वही है जिसका तुम दुनिया में इनकार करते थे, और यहाँ क़यामत के दिन और आग के सामने उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो कहें, क्यों नहीं, ए हमारे रब, बिल्कुल यही हक है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, वो एतराफ उन्हें कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि क़यामत का दिन हिसाब का दिन है जिसमें कोई अमल नहीं, और दुनिया अमल की जगह है, हिसाब की नहीं। और यहाँ उन लम्हात में अल्लाह ताला उन मुनकिरीन के बारे में अपने आदिलाना हुक्म से फैसला फरमाएगा, क्योंकि तेरा रब बंदों पर जुल्म नहीं करता। चुनाचे वो फरमाएगा, इस सख्त दिन यानी क़यामत के दिन का इनकार करने के बायस अब अजाब में गोते लगाओ। हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। हम इस पुकार और उस एतराफ को क़यामत के दिन तेरे सामने अपने लिए सिफारशी के तौर पर जमा करते हैं, तो हम पर रहम फरमा ए हमारे मौला। बात की दलील और उसकी शवाहिद के उस जिक्र के बाद कुरान करीम हमें सीधा एक और मंजर की तरफ ले जाता है, एक ऐसा मंजर जिससे दिल कांप उठते हैं। जलजला क़यामत की तफसील
और उसके साथ आने वाली ऐसी हौलनाकियां और हालात जो सांसें रोक देंगे और लोगों के अहवाल बदल देंगे। हम उनसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने सूरतुल हज में फरमाया, ए लोगों, अपने रब से डरो, बेशक कयामत का जलजला एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हामिला अपना बोझ गिरा देगी। और तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। ए अल्लाह, सलामती अता फरमा। ए अल्लाह, जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा, हमें अपने अजाब से बचा। ए अल्लाह, हमें रहम किए गए लोगों में शामिल फरमा। ए रब्बुल आलमीन। ये अजीम आयात इस मामले की शिद्दत और हौलनाकी पर दलालत करती हैं। इसीलिए इसमें कोई हैरत नहीं कि वो मोमिन जिसे उसकी कब्र में जन्नत की बशारत दी गई हो, वो भी क़यामत के दिन हश्र के मैदान में खौफजदा और लर्जा होगा। बल्कि अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो क़यामत के दिन रहमान के साए में होंगे और आग से दूर होंगे, इसकी आहट भी नहीं सुनेंगे। वो भी अल्लाह से खौफजदा और कांप रहे होंगे, क्योंकि वो क़यामत के दिन अल्लाह के गज़ब की शिद्दत को जानते हैं। और उन्हीं अंबिया के पास लोग घबराहट में जाएंगे ताकि वो अल्लाह ताला से फैसला करने, हिसाब शुरू करने और शदीद गर्मी और तपती धूप में इस क़याम को ख़त्म करने की दरख्वास्त करें। तो उनमें से हर एक नबी कहेगा, नफसी नफसी, मुझे अपनी फिक्र है। आज मेरे रब ने ऐसा गज़ब फरमाया है जैसा उससे पहले कभी नहीं फरमाया और ना उसके बाद कभी फरमाएगा। तुम किसी और के पास जाओ। जरा तसव्वुर करें, ये मासूम, रहम किए गए और रब्बुल आलमीन के मुकर्रब अंबिया का जवाब है। तो हम जैसे आम लोगों का क्या हाल होगा? हम कमजोरों का, हम गुनाहगारों और नाफरमानों का। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी तौबा कबूल फरमाए, हमें बख्श दे, हमें माफ करे और हम पर रहम करे। और जब मोमिन क़यामत के दिन अपना आमाल नामा दाएं हाथ में लेगा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें उनमें से बनाए। तो वो अपने गुनाहों का अंजाम नहीं जानता होगा, और ये कि आया वो उसकी नेकियों पर भारी पड़ जाएंगे या नहीं, और क्या उससे उन पर मुआखजा होगा या नहीं। बल्कि अगर उसकी नेकियां भारी भी हो जाएं, तो भी वो पुल सिरात पर अपना हाल नहीं जानता होगा। कोई मुसलमान निजात पाने वाला होगा, अल्लाहुम्मा आमीन। कोई जख्मी होकर गुजरने वाला होगा, अल्लाह की पनाह। और कोई जहन्नम की आग में गिरने वाला होगा, वल्लियाज़ु बिल्लाह। और हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े फरमा रहे होंगे, ए रब, सलामती दे, सलामती दे। यहाँ तक कि बंदों के आमाल आजिज आ जाएंगे और कम पड़ जाएंगे, हत्ता कि ऐसा शख्स आएगा जो सिर्फ रिंग कर चल सकेगा। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में बना जो सबसे तेजी से पुल सिरात उबूर करेंगे। सहीहीन में है, पुल सिरात जहन्नम की पुश्त पर बिछाया जाएगा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले उसे उबूर करेंगे, और उस दिन रसूलों के सिवा कोई बात नहीं करेगा। और उस दिन रसूलों की दुआ यही होगी, ए अल्लाह, सलामती दे, सलामती दे। इमाम नौवी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत सबसे पहले पुल सिरात पर चलेंगे और उसे पार करेंगे। वल्लाहु आलम। इसके अलावा पुल सिरात के बाद जो चीज इसका इंतजार कर रही है, वो अपने मोमिन भाइयों के साथ कंतरा, मजालिम के पुल पर कसास है। जैसा कि बुखारी की हदीस में अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन आग से निजात पालेंगे तो उन्हें जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पल पर रोक लिया जाएगा, तो वो दुनिया में एक दूसरे पर किए गए मजालिम का बदला लेंगे, यहाँ तक कि जब वो पाक और साफ हो जाएंगे तो उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, उनमें से हर एक जन्नत में अपने घर को दुनिया में अपने घर से ज्यादा बेहतर जानता होगा। इससे मालूम होता है कि ये मामला वाकई बहुत बड़ा है, जिससे तमाम लोग खौफजदा होंगे। और उस दिन कोई बंदा इस वक्त तक अपने आप को महफूज नहीं समझेगा जब तक कि वो रहमान की जन्नत में, अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी जन्नत और रज़ा पाने वालों में शामिल फरमाए। ए अल्लाह, हमें भलाई और इससे ज्यादा अता फरमा, और अपनी सबसे बड़ी रज़ा जन्नतुल फिरदौसुल आला में बगैर हिसाब और बगैर किसी अजाब के अता फरमा। अपनी रहमत के सदक़े
ए सबसे बढ़कर रहम करने वाले। इस अजीम मकाम पर जो बात जिक्र करना मुनासिब है वो इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह का वो कौल है जो उन्होंने अपनी किताब अल तज़किरत में पुल सिरात के बारे में कहा है। अब अपने दिल से उस घबराहट के बारे में सोचो जो तुम पर उस वक्त तारी होगी जब तुम पुल सिरात और उस की बारीकी को देखोगे। फिर तुम्हारी नजर उसके नीचे जहन्नम की स्याही पर पड़ेगी। फिर तुम्हारे कानों में आग की चीख व पुकार और उसका गैज़ व गजब टकराएगा और तुम्हें इस पल सिरात पर चलने का मुकल्लफ किया गया होगा, जबकि तुम्हारी हालत कमजोर, दिल घबराया हुआ, कदम डिगमगा रहे होंगे और पीठ उन बोझों गुनाहों से लदी होगी जो तुम्हें जमीन की सतह पर चलने से रोकते हैं। कुजा ये कि पुल सिरात की तेजी पर चलना, तो तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम इस पर अपना एक पांव रखोगे और उसकी तेजी महसूस करोगे और अपना दूसरा पांव उठाने पर मजबूर हो जाओगे, जबकि तुम्हारे सामने मखलूक फिसल रही होगी और ठोकरें खा रही होगी और जहन्नम के फरिश्ते उन्हें आंकड़ों और कांटों से पकड़ रहे होंगे और तुम उन्हें देख रहे होगे कि वो कैसे जहन्नम की तरफ ऊंधे मुंह गिर रहे हैं। उनके सर नीचे और टांगें ऊपर होंगी। कितना ही हौलनाक मंजर होगा और इस पर चढ़ना कितना मुश्किल होगा और चलने की जगह कितनी तंग होगी। ए अल्लाह, सलामती अता फरमा, सलामती अता फरमा। जो कुछ ऊपर बयान किया गया इससे आप जान चुके होंगे कि जो शख्स क़यामत के दिन हिसाब के किसी एक मरहले से निजात पा लेता है वो बराह रास्त जन्नत में दाखिल नहीं होता जब तक कि वो बाकी तमाम मराहिल से न गुजर जाए, सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे और जो अल्लाह चाहे। अलबत्ता ये नस वारिद हुई है कि कुछ लोगों को उनमें से कुछ चीजों से माफ रखा जाएगा, जैसे वो लोग जो बगैर हिसाब और बगैर किसी पहले अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। कहा गया है, लेकिन वो पुल सिरात से जरूर गुजरेंगे। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में से बना जो बगैर हिसाब और बगैर किसी पहले अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। और यहाँ हम कयामत के मनाजिर में से पहला हकीकी मंजर शुरू करते हैं। वो अजीम लम्हा जब पूरी कायनात बदल जाएगी, इसका निज़ाम और सुकून मुतजलजल हो जाएगा और मखलूक एक ऐसे वाक़े के सामने खड़ी होगी जिसकी मिसाल उन्होंने कभी नहीं देखी हो गई और न कभी देखेंगे। ये वो लम्हा है जब लोग अपनी कब्रों से हैरत ज़दा निकलेंगे, हालात की तब्दीली देखकर दंग रह जाएंगे। ये वो अजीम वाक़या है जिसे अल्लाहुल अजीम ने अपनी किताब अजीम में बयान फरमाया है, जिसकी वजह से सदियों से दिल कांपते रहे हैं। और इस जमा शुदा गफलत के साथ क़यामत की हौलनाकियां इंसानों को उनकी गफलत और लंबी नींद से बेदार करने आएंगी। और इन बड़ी हौलनाकियों में सबसे पहले सूर फूंका जाना है, वो अजीम वाक़या जिससे दिल कांपेंगे और जानें तड़प उठेंगी। हम एक ऐसे लम्हे के सामने हैं जिसमें जमीन और आसमान लरज उठेंगे। एक ऐसा लम्हा जिसमें कब्रों वाले पहली चीख सुनेंगे और अपनी ख्वाबगाहों से हैरान और परेशान, बिखरे बालों और गर्द-आलूद हालत में उठ खड़े होंगे। इस हैरानी में कि किधर जाएं, वो बमुश्किल ही समझ पाएंगे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और ये कैसा कायनाती इनकलाब बरपा है जिसकी कोई मिसाल नहीं। किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठाया, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और कुरान ने इस मंजर की बड़ी बलीग तस्वीर कशी की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, और सूर फूंका जाएगा तो वो फौरन कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। और रब जुल जलाल ने फरमाया, फिर जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और क़यामत के दिन का आगाज है जिससे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी और हर हामिला अपना बोझ गिरा देगी। और तू लोगों को इसकी शिद्दत से ऐसा देखेगा जैसे वो नशे में हों, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। लेकिन इस दिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। हम क़यामत के दिन से, उसकी सख्ती से, उसमें जो कुछ है उससे और उसकी हौलनाकियों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम में और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत नबवी में अजीम वाक़े की तफसीलात बयान की हैं। सूर एक सिंग की तरह का आला है जिसमें 2 ज़बरदस्त फूंके मारी जाएंगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूर के बारे में पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर एक सिंग है जिसमें फूंका जाएगा और फूंकने का काम फरिश्तों में से एक बहुत बड़े फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया है। और जब से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसराफील को सूर फूंकने का काम सौंपा है, वो खड़े इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपना सर और माथा झुकाया हुआ है।
सींग को मुंह से लगाया हुआ है, पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं और उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें सूर फूंकने की इजाजत देगा। ए अल्लाह सलामती दे, सलामती दे। और दोनों नफकों के दरमियान यानी मौत की फूंक जिससे आसमानों और जमीन की हर चीज मर जाएगी सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे, और बास दोबारा जिंदा करने की फूंक जिसके बाद लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। उन दोनों नफकों मौत और बास के दरमियान का फासला रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 मुकर्रर किया है, बगैर ये बताए कि आया ये 40 दिन हैं या महीने या साल। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मुराद थी। और इस दूसरी फूंक बास की फूंक के बाद लोग कब्रों से अपने रब की तरफ निकल पड़ेंगे ताकि हिसाब दिया जाए, और अल्लाह अकेले यकता और बहुत ज्यादा अता करने वाले बादशाह के सामने पेश हों उस अजीम दिन में जिसमें माल और औलाद काम न आएंगे मगर वो जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम साफ दिल लेकर आया। ए अल्लाह, हमें ऐसा साफ दिल अता फरमा जिससे तू हमसे राजी हो जाए। इब्तिदाई हौलनाक मंजर मुकम्मल होने के बाद अहम सवाल ये पैदा होता है कि क़यामत के दिन के वाक़यात का सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा और दोबारा जिंदा किए जाने के लम्हे से लेकर जन्नत में दाखिल होने, अल्लाह हमें अहले जन्नत में से बनाए, या जहन्नम में दाखिल होने, हम उससे और उसके अहल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, तक मखलूक़ात किन किन मराहिल से गुजरेगी। इस मसले में फुक़हा फरमाते हैं जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो वो मैदान हश्र की तरफ जाएंगे। फिर मैदान हश्र में एक लंबा क़याम करेंगे जिसमें उनकी हालत और प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी, और तवील क़याम और हिसाब और उन फैसलों के यकीनी होने की वजह से जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन पर नाफिज करेगा वो शदीद खौफ का शिकार होंगे। तो जब उनका क़याम लंबा हो जाएगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे पहले अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज कौसर जाहिर फरमाएगा। चुनाचे अरसात क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज मौजूद होगा। जब रब्बुल आलमीन के सामने उस दिन लोगों का क़याम शदीद हो जाएगा जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो शख्स आपकी सुन्नत पर फौत हुआ होगा, जिसने उसमें न कोई तब्दीली की, न बदल डाला, न कोई नई बात पैदा की और न बिदत की, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें उनमें से बनाए। वो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज पर आएंगे और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से पिलाया जाएगा। ये उनके लिए अमन की पहली अलामत होगी कि उन्हें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से पिलाया गया है। फिर उसके बाद हर नबी का हौज जाहिर किया जाएगा और उसकी उम्मत के नेक लोगों को इससे पिलाया जाएगा। ए अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से उनके मुअज़्ज़ज़ हौज से पीने से महरूम न फरमा। फिर लोग एक लंबा अरसा खड़े रहेंगे। फिर तमाम मखलूक़ात के लिए शफ़ाअत कुबरा, सबसे बड़ी सिफारिश का मरहला आएगा, और ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत होगी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मखलूक़ात के हिसाब में जल्दी फरमाए। तवील मारूफ हदीस में है कि वो लोग आदम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे, यानी अल्लाह के यहाँ उनके लिए शफ़ाअत की इल्तिजा करेंगे ताकि हिसाब शुरू हो। फिर वो नूह अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, आखिर तक, और वो सब कहेंगे नफसी नफसी, मुझे अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। यहाँ तक कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे ए मोहम्मद, और वो उन्हें अपनी हालत बताएंगे और दरख्वास्त करेंगे कि वो अल्लाह ताला से इल्तिजा करें कि हिसाब जल्दी शुरू करके लोगों को इस सख्ती से बचाए। तो इनकी दरख्वास्त के बाद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे इश्फा लना इंद रब्बिक, हमारे लिए अपने रब के यहाँ सिफारिश कीजिए। कि जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा, मैं उसके लिए हूँ, मैं उसके लिए हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बादशाह वाहिद यकता के अर्श के पास आएंगे और सजदे में गिर पड़ेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ऐसी शानदार हम्द व सना बयान करेंगे जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन पर इल्हाम फरमाएगा, जो इससे पहले न उन पर और न किसी और पर खोली गई होगी। फिर कहा जाएगा ए मुहम्मद, अपना सर उठाइए, मांगे आपको दिया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी।
तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा हिसाब में जल्दी के लिए होगी। इसके बाद आमाल पेश किए जाएंगे और इस पेशी के बाद हिसाब होगा जो आमाल नामों के उड़ने के बाद होगा। और पहला हिसाब पेशी का हिस्सा होगा क्योंकि इसमें बहस व मुबाहिसा और उज्र पेश किए जाएंगे। फिर इसके बाद आमाल नामे उड़ाए जाएंगे। दाएं हाथ वालों को उनका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और बाएं हाथ वालों को बाएं हाथ में। ऐ अल्लाह, हमें दाएं हाथ में देना, न कि बाएं हाथ में। तो ये आमाल नामा पढ़ने का मरहला होगा। आमाल नामा पढ़ने के बाद भी एक हिसाब होगा ताकि उज्र खत्म हो जाए और आमाल नामों में जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर हुज्जत तमाम की जाए। फिर इसके बाद मीज़ान तराजू कायम होगा, तो जो चीजें हमने जिक्र की वो तोली जाएंगी। मीज़ान के बाद लोग मुख्तलिफ गुरोहों और जोड़ों में बट जाएंगे। जोड़ों का मतलब यह है कि हर एक अपने जैसे के साथ मिल जाएगा और जमा किया जाएगा। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के झंडे कायम किए जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का झंडा, मूसा अलैहिस्सलाम का झंडा वगैरह। और लोग अपनी अक़साम के मुताबिक झंडों के नीचे जमा होंगे। हर शक्ल अपने जैसी शक्ल के साथ जमा होगी। जालिम, काफिर, फाजिर और मुजरिम भी जोड़ों में जमा किए जाएंगे, यानी एक जैसे लोग। अल्लाह ताला ने सूरत अस्साफ़ात में फरमाया, जिन्होंने जुल्म किया और उनके हम मसलकों, जोड़ों को और जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे, सबको जमा करो, फिर उन्हें जहन्नम का रास्ता दिखाओ और उन्हें रोको, उनसे सवाल किया जाना है। इस आयत का मतलब यह है कि मुशरिकीन के उलमा, उनके बड़े और उनके सरदार दीगर मुशरिक उलमा उनके बड़ों और सरदारों के साथ जमा किए जाएं। जालिम मुजरिमों को जालिम मुजरिमों के साथ और क़यामत का इनकार करने वालों को क़यामत का इनकार करने वालों के साथ जमा किया जाएगा। इसी तरह एक जैसी अक़साम में हर गिरोह अपनी किस्म के मुताबिक जोड़ों में होगा। फिर उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल जालिमों पर जहन्नम से पहले अंधेरा छा देगा, वल आयाज़ु बिल्लाह। तो लोग इस नूर के मुताबिक चलेंगे जो उन्हें दिया जाएगा। ये उम्मत भी चलेगी और इसमें मुनाफिकीन भी होंगे। फिर जब वो अपनी रोशनियों के साथ चलेंगे तो एक मारूफ दीवार खड़ी कर दी जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरतुल हदीद में फरमाया, फिर उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा। उसके अंदर की तरफ रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी रहमत से मोमिनों को उनका नूर देगा जिससे वो पुल्ले सिरात का रास्ता देखेंगे और अल्लाह की रहमत, उसकी हिफाजत और निगरानी में उस पर चलेंगे। जबकि मुनाफिकीन वल आयाज़ु बिल्लाह को कोई नूर नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो काफिरों के साथ होंगे और आग में गिरेंगे। कहा गया है कि काफिरों को तो बराह रास्त आग में डाल दिया जाएगा, तो वो पुल सिरात पर चलेंगे ही नहीं। और ये भी कहा गया है कि मुनाफिकीन पुल सिरात पर चलना शुरू करेंगे लेकिन आग में गिर जाएंगे, क्योंकि ना उनके पास नूर होगा और ना ईमान जिसके सहारे वो चल सकें, और उनके सामने जहन्नम होगी, वलियाज़ु बिल्लाह। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ लाएंगे और पुल सिरात पर होंगे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपने और अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, ए अल्लाह सलामती दे, सलामती दे। चुनाचे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे और उनकी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी। हर कोई अपने आमाल के मुताबिक गुजरेगा और उसके आमाल के मुताबिक ही उसके पास नूर होगा। ए अल्लाह, हमें ऐसे आमाल और ऐसा नूर अता फरमा जिसके जरिए हम दुनिया, आखिरत और पुल्ले सिरात पर रास्ता देख सकें। जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बख्श दिया होगा वो पुल्ले सिरात से गुजर जाएगा और मुनाफिकीन और काफिर आग में गिर जाएंगे। मुवहिदीन की तह में से जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अजाब देना चाहेगा, कहा गया है कि वो आग में मुवहिदीन की तह में गिरेगा। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जहन्नम के ऊपर से पुल्ले सिरात उबूर कर लेगी तो वो जन्नत के मैदानों यानी उन सहनों में जमा होंगे जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इसलिए तैयार किए हैं ताकि वो एक दूसरे से बदला, क़िसास ले सकें और उनके दिलों से कीना और बुग़्ज़ निकाल दिया जाए, ताकि जब वो जन्नत में दाखिल हों तो उनके दिलों में कोई कीना, हसद या बुग़्ज़ न हो। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले मुहाजिरीन के गरीब लोग और अंसार के गरीब लोग, फिर उम्मत के गरीब लोग जन्नत में दाखिल होंगे और अमीरों को इस हिसाब किताब की वजह से रोका जाएगा जो उनके और मखलूक के दरमियान होगा। तो क्या दुनिया का आखिरी दिन करीब आ गया है?
ये सवाल हर कुछ अरसे बाद दोहराया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और ये कोई नया नहीं है। शायद हर जमाने के लोग ये समझते हैं कि इनका जमाना वो जमाना है जिसमें कयामत की निशानियां जाहिर होंगी या कयामत करीब आ जाएगी। इसी हवाले से एक मुतनाज़ा पेशीन गोई जो 2 दिहाइयां पुरानी है, हाल ही में दोबारा मंजर आम पर आई है। ये पेशीन गोई एक दमदार सितारे के जमीन से टकराने की तवक्को करती है, और ये पेशीन गोई वो है जो एक नाम निहाद पाकिस्तानी रूहानी पेशवा रियाज अहमद गौहर शाही ने सन 2000 में शाया होने वाली अपनी किताब दीन अल्लाह में की थी। इसके बावजूद ये पेशीन गोई तवील अरसे तक फरामोशी की नज़र रहने के बाद दोबारा तनाज़ा खड़ा करने के लिए वापस आ गई है। और ये पेशीन गोई और इस जैसी दीगर बातों की कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं है, और हम वही कहते हैं जो अल्लाह का फरमान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्योंकि हमें सिर्फ इसी बात का इल्म है जो हमारे रब ने अपनी किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमें सिखाया है। अजीब बात यह है कि ये गौहर शाही अपनी इस किताब की इशाअत के सिर्फ 1 साल बाद सितंबर 2001 में लंदन में पुरस्रार तौर पर गायब हो गया था। ताहम इसके पैरोकार अब भी इस बात पर इसरार करते हैं कि ये रूहानी पेशवा, जिसकी उम्र अब 84 साल होती अगर वो जिंदा होता, और जो अभी तक मंजर से गायब है और गायब ही है। गौहर शाही ने अपनी तहरीरों में दावा किया था कि अल्लाह इंसानों को रूहानी हकायक से दूरी की सजा देने के लिए जमीन को तबाह करने की खातिर एक दमदार सितारा भेजेगा, और पेशीन गोई की थी कि एक दमदार सितारा आने वाले 20 से 25 सालों के दौरान जमीन से टकराएगा, जैसा कि उसने सन 2000 में शाया होने वाली किताब में लिखा। एक दमदार सितारा जमीन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए उसकी तरफ भेजा गया है, और तवक्को है कि ये आने वाले 20 से 25 सालों में इससे टकराएगा, और वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। शाही का मानना है कि ये खुदाई सजा इंसानी अखलाकियात के जवाल के नतीजे में आ रही है, जिसमें जौहरी हथियारों की वजह से कभी खत्म न होने वाली जंगें और इंसानों का मामूली वजूहात की बिना पर एक दूसरे को तबाह करना शामिल है। इन इंतबाहात के बावजूद दुनिया भर की खलाई एजेंसियों ने 2026 के आने से पहले जमीन के लिए खतरा बनने वाले किसी भी अजराम फल्की का सुराग लगाने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि कई दमदार सितारों और सैयारचों, जिनमें मशहूर सैयारचा अपोफस भी शामिल है, को हाल ही में नासा की कम तसादुम के इम्कानात वाली अशिया की फहरिस्त से हटा दिया गया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उनमें से किसी के भी मुस्तकबिल करीब में जमीन तक पहुंचने का इम्कान नहीं है। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा कबल गौहर शाही ने कहा था कि कयामत के दमदार सितारे की निशानियां निजाम शमसी में पहले ही जाहिर हो चुकी हैं, जहां उसका एक हिस्सा सैयारा मुश्तरी से टकरा गया है, और उस पर उसने कहा 2 साल पहले दमदार सितारे का एक टुकड़ा मुश्तरी पर गिरा था, और साइंसदान ये जानते हैं, और वो दमदार सितारे के गिरने से पहले चांद या किसी और सैयारे पर बसने का मंसूबा बना रहे हैं, ऐसा उसने कहा था। गौहर शाही की पेशीन गोई की सच्चाई को साबित करने वाले शवाहिद न होने के बावजूद एक हालिया तहकीक ने खबरदार किया है कि सैयारा ज़हरा उन आने वाले सैयारचों के बारे में हमारी बसारत को धुंधला सकता है जो सूरज की चमक में छपे हुए हैं। ताहम फिलहाल ऐसा होने की कोई दलील मौजूद नहीं है। लेकिन क्या कयामत कायम होने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई और मखलूक पैदा करेगा? बाज़ ज़राए में जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला उस मखलूक के फना होने के बाद एक और मखलूक नए सिरे से पैदा करेगा। तो ये दुनिया ऐसी दुनियाओं के बाद आई है जो फना हो चुके, और उसके बाद और दुनियाएं आएंगी जो वजूद में आएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने अल्लाह ताला के उस फरमान से इस्तिदलाल किया, क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? बल्कि वो नई पैदाइश के बारे में शक में हैं। और इस आयत करीमा की तफसीर में कुछ आरा कहती हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस मखलूक और इस दुनिया को फना कर देगा और अहले जन्नत जन्नत में और अहले दोज़ख दोज़ख में बस जाएंगे, तो अल्लाह इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया और इस मखलूक के अलावा एक और मखलूक पैदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि उन तमाम खबरों और उन तमाम आरा की किताब और सही सुन्नत में कोई दलील नहीं है, बल्कि ये ऐसी तावीलें और फहम हैं जिनके लिए कोई सच्चा हवाला नहीं जिस पर इन्हिसार किया जाए। जहां तक बहुत सी वेबसाइट्स पर फैली हुई इस चीज का ताल्लुक है जिसे क़यामत की घड़ी डूम्सडे क्लॉक कहा जाता है, तो इस घड़ी का तस्वुर 1947 से जौहरी साइंसदानों ने कायम किया था,
और ये ग्रुप 1945 में कायम हुआ था, जिसमें शिकागो यूनिवर्सिटी के वो साइंसदान शामिल थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पहले जौहरी हथियार बनाने में मदद की थी। आधी रात दुनिया के खात्मे की निशानदेही करती है, जबकि आधी रात से पहले के मिनट जौहरी जंग छिड़ने के इम्कान और इंसानियत और जमीन के लिए खतरात की निशानदेही करते हैं। और हर साल इस बुलेटिन के साइंसदान ये फैसला करते हैं कि आया पिछले साल के वाकयात ने इंसानियत को तबाही के करीब धकेल दिया है या उसे इससे दूर कर दिया है। इस ग्रुप के मुताबिक ये घड़ी इस बात की निशानदेही करती है कि हम अपनी बनाई हुई खतरनाक टेक्नोलॉजी से अपनी तहजीब को तबाह करने के कितने करीब हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और हालिया बरसों में घड़ी की सेटिंग्स ने ज्यादातर जौहरी जंग के खतरे और बेकाबू मौसमियाती तब्दीली के खतरात की अक्कासी की है। लेकिन ये सब कुछ ना तो मुसद्दिका है और ना ही इसमें कोई इख्तलाफ है, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व ताला है। और इस तरह हमारे सामने क़यामत के दिन के आगाज की पहली तस्वीर वाज़ेह होती है। ऐसे लम्हात जो वक्त के बाकी लम्हात जैसे नहीं हैं, बल्कि एक नई दुनिया के आगाज हैं। और ये वो सच्चा वादा है जो कायनात के रब ने किया है, और इसका सच्चा वादा कभी टलता नहीं। और ये इस चीज का निफाज है जिसे अल्लाह ने इंसान को पैदा करने से भी पहले, बल्कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिखा था। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कलम को लिखने का हुक्म दिया था, तो उसने वो सब लिख दिया था जो कयामत तक होने वाला है। ये था वो बयान जो कयामत के दिन के पहले मिनट के बारे में कुरान और सुन्नत नबवी में वारिद हुआ है। और अल्लाह सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जानने वाला है। ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे वालदैन और तमाम जिंदा और मुर्दा मोमिन मुर्दों और औरतों को बख्श दे, अपनी मखलूक की तादाद, अपनी रजा, अपने अर्श के वजन और अपने कलमात की सियाही के बराबर।